कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक व्हील वाली साइकिल लेकर यात्रा पर निकले साइकिल यात्री इन दिनों गुजरात से गुजर रहे हैं। गुजरात के भरूच के झगड़िया में साइकिल यात्री सानिद दिविजेड और हाशमी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। युवाओं को व्यसन से दूर रहने के संदेश के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक व्हील वाली साइकिल लेकर निकले केरला कुन्नूर के साइकिलिस्ट अलग अलग राज्यों से गुजर रहे हैं। अब तक इन्होंने 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। ये दोनों साइकिलिस्ट एक व्हील वाली साइकिल पर अलग अलग स्टंट करते हैं और इन दिनों युवाओं को व्यसन मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। सात 7000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले साइकिल यात्री ने झगड़िया के रायसिंहपुरा में बालाजी हनुमान मंदिर में हॉल्ट कर हनुमान जी का प्रसाद भी लिया। इस मौके पर उन्होंने वीएनएम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत भी की। I am from Kerala Kannur and his name is Hashmi. He is also from Kerala Kannur. We started from Kanyakumari, I think December something. Now 4 months. Now I completed more than 3,700 kilometers, and it's my 3 years of dream to Kanyakumari to Kashmir by without front tire, and it's a difficult task. And we are carrying a message that is say no to drugs. And in our Kerala, most of the in my age of people are using drugs. That's why we are choose this message. And now India also, I think, suffering these issues because a lot of the people are using drugs, and that's why we choose this message. And it's a normal cycle to enter. We are actually going Umlingla Pass, most world highest motorable road. We are going there, and it's a normal cycle to enter is not possible. It's very difficult, and I'm going by without front tire, and it's maybe it's impossible. And it's my 3 years of dream, and I want to do something different. That's why I choose this. And he is carrying my luggages, and he is my co-driver, and he is doing such a great things for me because he's my right hand also, and more than 60 kgs weight he is carrying. And we have we will stay in tent, and we will put tent over in petrol pumps and mandir and masjid and dhaba. Where we get bathroom facilities, there will be stairs, and we have carrying gas cylinder and little all cooking items we have. And we have 3 jodi dress. We are carrying that 3 jodi dress and every toolkits. Now we started 4 months left, and we need 2 months need to reach there. And now we are completed 3,700 something kilometers. We want to cover more than 2,500 something again, and the total journey is 7,000. I think around 7,000 something. And I don't know is this possible. Maybe it's a try, fail or win, I don't know, but it's a just try. If I can win, it's my greatest achievement. And he is controlling my everything. He is handling my ride and my media also. मॉनसून के मौसम में वडोदरा में पानी जनित बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वडोदरा के कई इलाकों में हैजा, टाइफाइड, उल्टी, दस्त के मामले सामने आए हैं। ऐसे में वडोदरा के दंतेश्वर से तरसाली इलाके के पानीपुरी के ठेलों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चेकिंग की गई और अखाद्य पदार्थ को नष्ट किया गया। वडोदरा के कई इलाकों में स्वास्थ्य विभाग इस तरह की जांच कर रहा है। दंतेश्वर से तरसाली के बीच पानी पूरी बेचने वाले ठेलों की जांच कर सड़े हुए आलू, चने, पानी पूरी की पूरी इत्यादि का नाश किया गया। साथ ही 10 दिनों तक इन सभी व्यापारियों को ठेला नहीं लगाने की सूचना दी गई है। અત્યારે જે રોગચાળાનો પરિસ્થિતિના કારણે આપણે છેલ્લા 2 દિવસથી એના અગાઉથી પણ આપણે પાણીપુરીનું ચેકિંગ કરવામાં આવે છે। પાણીપુરીમાં ખાસ કરીને જે પાણી વપરાય છે તેની પરિસ્થિતિ બરાબર ના હોવાના કારણે તેમજ જે અંદર જે બટાકા અને બધા ખરાબ વાપરવાના કારણે હમણાં આપણે પાણીપુરી તમામ વિસ્તારો ચેકિંગ બંધ કરાવેલ છે। તેમાં લગભગ 200 લીટર જેટલું પાણીનું ડિસ્ટ્રોય કરેલું છે। આજે 2 ટીમો, એક ટીમ સંગમ
મહાવીર રોડ વિસ્તારમાં છે. બીજી ટીમ અત્યારે દંતેશ્વરી તરસાલી વિસ્તાર તમામ કવર કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा शहर के कई इलाकों में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस पेट्रोलिंग के अभाव में चोर सोसाइटी में सरेआम ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक घटना कुछ दिनों पहले पोलो ग्राउंड निकट की राजदीप सोसाइटी में घटी, जहां बंद मकान को तोड़ने की कोशिश की गई, जिससे परेशान सोसाइटी के लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग की मांग की है। यहाँ पे एक घर का ताला टूटा है, कल सुबह पता चला। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, लेकिन पुलिस की ओर से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी भी पेट्रोलिंग वगैरह कुछ शुरू नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे काफ़ी विधवा बहनें रह रही है, काफ़ी लेडीज़ के बच्चे बाहर रह रहे, तो सब लोग अकेले भी रह रहे हैं यहाँ पे। तो उन लोगों को अभी डर लग रहा है, क्योंकि अभी 6 महीने में 3 बार ऐसा हुआ है इस सोसाइटी में, इसलिए सब लोग अभी डर रहे हैं। लगेगा ही ना, ऐसा ही कोई सपोर्ट ही नहीं है, फिर क्या बोलेंगे हम। तो हमारे यहाँ कुछ दिन पहले इसी मकान के अंदर चोरी का प्रयास करा गया, वो सफल नहीं रहा। और ये पहला प्रयास नहीं था, इससे पहले 2 बार इसी सोसाइटी में इसी तरीके के प्रयास हुए। इसकी वजह से सोसाइटी के जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके अंदर भय का माहौल है। इस सोसाइटी के अंदर कितने घर ऐसे हैं जिसके अंदर बुजुर्ग लोग रहते हैं। अगर बुजुर्ग लोग अकेले अंदर है और कुछ असामाजिक तत्व घर में घुस जाते हैं तो बुजुर्ग लोग तो गए, वो अगर चिल्लाएंगे तो असामाजिक तत्व उनका गला दबा देंगे। तो लोगों के अंदर पूरा भय का माहौल है। हमारे लोग पुलिस को भी अप्रोच किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है, पुलिस क्या कर रही है वो हमें पता नहीं है, पर हमारे सोसाइटी के अंदर संपूर्ण तरीके से भय का माहौल खड़ा है। और ख़ास करके बहुत से मकान ऐसे हैं जिसके अंदर बुजुर्ग लोग निवास करते हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी ये मांग है कि पुलिस अपनी ओर से कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिससे इस सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर से वातावरण भय मुक्त हो। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के जूनागढ़ के भैसान तालुका में मालीदा गांव है, जहां बीती रात 4 शेरों ने आतंक मचाया। शेरों ने शिकार की खोज में रात को 3 पशुओं को मार डाला और 3 पशुओं को घायल किया। गांव में रात के अंधेरे में शेरों के हमले से यहां के लोगों में डर का माहौल देखने मिल रहा है। जंगलना सिंह वारंवार अमारे आ रीते नुकसान करे है। लाख रुपयानी भેં હોય તો મારી નાખે તો જંગલવાળા અમને 15 થી 20 હજાર રૂપિયા માન આપે। અને એક તો અમારે મોટો તકલીફ પાવરની થઈ ગઈ। અમારે પાવર જે પહેલાં હતો દિવસ પારીનો એ રીતે ગોઠવી જાય ને તો અમારે આ પ્રોબ્લેમ ન થાય। હર વખતે દીપડાને હાવજ અમારા ઘર ઉપર હુમલા કરી નાખે। એટલે અમે જો વાડીએ આવી જઈએ તો વાંહે હાવજ આવીને પશુને મારી નાખે અને વાડીએ બીતા બીતા પાણી વારતા હોય। હાવજ બસ ભટકે મોટર બંધ કરીને ઘેરે ભાગવું પડે। આજે 5 મારી નાખ્યા છે અને 2-3 ઘાયલ છે। એ જંગલ ધારા વૈયા ગયા સારવા માટે। સિંહ હતા 4 અહીંયા આપણે ઘેરે આવ્યા હતા, બીજા ગામમાં 2-3 હતા। ગામમાં મારણ કર્યા 4 અને 2-3 ને સૂથી નાખ્યા। એક આપણે અહીં વાડીમાં કરી નાખ્યો આપણે ઘરે। આવક જે આપણે હતો ને 8-8 કલાક આપણે આપી દઈએ ને દિવસનો તો આ પ્રોબ્લેમ ન રહે। मुहर्रम के खास मौके पर मुस्लिम समुदाय ताजिया का विसर्जन करते हैं, लेकिन वडोदरा शहर में एक ताजिया ऐसा है जो तालाब के बजाय वडोदरा के पौराणिक बहुचराजी मंदिर में ठंडा किया जाता है और उसके बाद ये दफन होता है। वडोदरा में गायकवाड़ शासन के समय से नागरवाड़ा हकीम साहब के वाड़े में स्थापित किए जाते ताजिया तालाब में नहीं, लेकिन कारेली बाग के पौराणिक बहुचराजी मंदिर में मंदिर के पुजारी की पूजा अर्चना के बाद ठंडे किए जाते हैं। कौमी एकता के प्रतीक स्वरूप इस परंपरा को हिंदू मुस्लिम समुदाय सालों से मनाता आया है, जो इस बार भी निभाई गई। हकीम साहब के वाड़े के ताजिया धूमधाम के साथ बहुचराजी मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी अमरीश कुमार ने ताजिया का स्वागत किया। मंत्रोच्चार के साथ ताजिया पर नारियल के पानी का छिड़काव कर ताजिया को ठंडा कर नारियल चढ़ाया गया। ताजिया ठंडा करने के बाद आजवा रोड पर करबला के मैदान ले जाया गया, जहां परंपरा और विधि विधान से उन्हें दफन किया गया। आज हम लोग जहाँ के ऊपर खड़े हैं, ये तकरीबन 600 साल पुराना ये मंदिर, और यहाँ के ऊपर हम इमाम हुसैन का जुलूस लेकर 10वीं का यहाँ के ऊपर ये बड़ौदा के लोग, ये आवाम लेकर आई है। ये मुसलमानों का और ख़ासकर एक बहुत ही अजीम मुसलमानों का क्या पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट है करबला का। और यहाँ के ऊपर हर फ़िरका, हर मज़हब, और यही वजह है कि हमारे इस मंदिर के और तमाम जो पुजारी लोग हैं उन्होंने आके इस तादिया को ठंडा किया है।
और इस मुल्क में अगर आप देखिए हुसैन मजलूम का, मुझे याद है कि मैं बंगाल में था और उस बंगाल में मैंने देखा है कि हिंदू औरतें बाकायदा आज की तारीख में बहुत से ऐसी फैमिलियां हैं जो ब्राह्मण फैमिली हैं, वो बाकायदा अपने बच्चों को अगर छोटे हैं तो अपने बच्चों को पानी नहीं पिलाती हैं, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। और हमने पूछा कि क्यों? कहा जब तक हुसैन का ताजिया और हुसैन का नहीं गुजर जाएगा और वो ठंडा नहीं होगा उस वक्त तक हम अपने बच्चों को दूध नहीं दें। क्यों? इसलिए कि करबला में हुसैन का बच्चा प्यासा था और ये पूरा मामला प्यास न मजहब देखती है, न दीन देखती है, न किसी आदमी और विशेष वर्ग को देखती है, बल्कि प्यास हिंदू को भी लगती है, मुसलमानों को भी लगती है। ये जुलूस हम इसलिए निकालते हैं ताकि पता चले कि करबला में एक यजीद जो रावण के रूप में आया था और हुसैन अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारे यहाँ हिंदुओं में राम शांति के प्रतीक हैं और रावण अशांति का प्रतीक है, वैसे ही हुसैन अलैहिस्सलाम हर मजहब के लिए शांति का प्रतीक है। और हुसैन वाला, आजादारी करने वाला कभी भी आपको आतंकवादियों की भीड़ में नहीं दिखेगा, हमेशा वो शांति फैलाता दिखेगा, हमेशा अमन फैलाता दिखेगा। और इसीलिए शायद मुझे याद है कि इसीलिए अगर इस बात को मैं आप तक पहुंचा दूं, इसीलिए महात्मा गांधी ने जब इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया तो उस आंदोलन में उन्होंने करबला की इस हिस्ट्री को पढ़ के कहा कि अगर मैं इस देश में आंदोलन ला सकता हूं तो मुझे इमाम हुसैन का रास्ता सबसे बढ़िया लगा है। ये हुसैन चूंकि शांति के प्रतीक हैं और जिस शांति के साथ उन्होंने यजीद जैसे रावण को खत्म कर दिया, महात्मा गांधी जी ने हमारे इस देश को अंग्रेज जैसे रावणों से आजाद करके आज इस पूरे देश को आजाद कर दिया। दिल्लीમાં સ્થિત આવેલ સુપ્રસિદ્ધ અને પૌરાણિક શ્રી બહુચરાજી મંદિરના પૂજારી વીરાન રમેશચંદ્ર તમામને જણાવું છું કે આજે મોહરમનું પર્વ હોવાથી પ્રતિવાર્ષિકની જેમ નાગાણવાડા સ્થિત હકીમ સાહેબનો જે ઇમામવાડો છે ત્યાં આગળ આ તાજિયા બેસાડવામાં આવે છે અને પ્રતિવાર્ષિકની જેમ મોહરમના દિવસે આ તાજિયાને બહુચરાજી મંદિર ખાતે લાવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ બહુચરાજી મંદિરના પૂજારી દ્વારા આ તાજિયા પર પંચદ્રવ્યોનો છંટકાવ કરી આ તાજિયાને ઠંડા કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આજવા રોડ સ્થિત ગુલિસ્તાન એપાર્ટમેન્ટ છે એની પાછળ આ તાજિયાને દફનાવવામાં આવે છે। આ પ્રણાલી આશરે 250 વર્ષથી ચાલુ છે અને હાલમાં પણ બહુચરાજી મંદિરના ગાદીપતિની 11મી પેઢી આ પ્રણાલી પ્રમાણે મુજબ કાર્યરત કરી રહી છે। કદાચ વડોદરા કાં તો વિશ્વના કાં તો સમગ્ર ગુજરાતના આ એકમાત્ર એવા તાજિયા હશે કે જેનું વિસર્જન મંદિરના પૂજારી દ્વારા કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આ તાજિયાને દફનાવવામાં આવે છે। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 14 संदिग्ध मामले थे, जिसमें से करीब 8 से 9 बच्चों की मौत भी हुई है। इन सभी के सैंपल्स पुणे भेजे गए हैं। ચાંદીપુરાની ગઈકાલે મેં પ્રેસની અંદર આખી વિગતો આપી છે અને બહુ ડિટેલ વિગતો આપી છે અને આજે પેપર્સની અંદર પણ આ કેસો ગઈકાલે 14 જેટલા હતા ને એમાંથી મૃત્યુ 8 થી 9 જેવા હતા। હવે કયા કારણોસર એ તો એની વિગતવાર તપાસ કરી અને ચાંદીપુરમનો જે રોગ છે સેન્ડ ફ્લાય એટલે કે રેતીની માખથી આ થતો રોગ, એ રોગ હજુ એના જે નમૂનાઓ ખરા એ આપણે પૂના મોકલ્યા છે। અત્યારે આપણે સસ્પેક્ટેડ ગણીએ છીએ કારણ કે એના લક્ષણો આને મળતા આવે છે, એટલે આવે એટલે કન્ફર્મ આપણે કરીશું। પરંતુ આ ચાંદીપુરમને મળતા પ્રકારનો એક રોગ અત્યારે પીડિયાટ્રિશિયનો આપણને કહી રહ્યા છે। અરે જ્યાં આગળ અને ખાસ કરી મધ્ય ગુજરાતની અંદર આ રોગનું પ્રમાણ આપણને વધારે જોવા મળ્યું છે, પરંતુ દરેક જગ્યાએ ઘરોમાં જે માટીના ઘરો હોય, લીંપણના ઘરો છે, એવા ઘરોમાં રહેલી તિરાડોમાં આ માખીઓ હોય છે, આ જે એના જીવાણુઓ હોય છે, કીટકો, એ એમાં વસતા હોય છે। ત્યાં આગળ એને પૂરવાનું કામ, જંતુનાશક દવા કરવાનું, નાખવાનું કામ, આ બધા કામો સાથે લગભગ 4546 જેટલા ઘરમાં કામગીરી કરી ચૂક્યા છીએ અને આશરે 44,000 જેટલા લોકોને પણ આમાં આપણે આવરી લીધા છે આ તપાસમાં। ખનન વિષયમાં ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે જે ત્રણ જગ્યાએ જ્યાં આગળ બખોલ હતી અથવા તો જેને કહી શકીએ કે કેવ્સ હતી, એમાં આ 3 મજૂરોનો મરવાનો જે ઇસ્યુ બન્યો, તપાસ એમને સોંપી દીધી છે, તપાસ ચાલુ છે અને તપાસના અંતે કોઈ પણ વસ્તુ
પુરાવા વગર કોર્ટમાં જવાતું નથી, એટલે પુરાવા મેળવવાની કાર્યવાહી, તપાસની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે.